Very good morning to all the students of class 10th. Welcome to your maths class. And as we have discussed yesterday, we have finished our chapter number 3. And in that particular chapter, we have left the word problem. And those word problems will be associated with the word problems given in the quadratic equation. Because we have to find out or we have to identify which questions has to be solved with the help of quadratic equation and which questions should be solved with the help of linear equation in two variables. So today we are going to start our new chapter, chapter number 4, quadratic equation. Now the first topic or the first question arises here, sir, what is a quadratic equation? So see, we have already seen the quadratic polynomial. We have already seen the quadratic polynomial, which was an algebraic expression, which was an algebraic expression having maximum power 2. The degree of the polynomial was 2, and there was only one variable used throughout the algebraic expression, and its standard formula was ax square plus bx plus c. I hope you all are remembering this particular expression, which was the standard form of quadratic polynomial. So quadratic polynomial and quadratic equation are very closely related to each other. Whenever we were solving this quadratic polynomial, we get the factors of the polynomial. Factors of polynomial या फिर आप ये कहिए कि 2 factors. ठीक है, the maximum power of the quadratic polynomial is 2, the degree is 2. Therefore, when we go for the factorization of quadratic polynomial, we always get 2 factors of the particular polynomial. But here, when we are talking about quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म इट विल बी सेम एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c. Now what is the difference between standard form of a quadratic polynomial and quadratic equation? In the solution of or the factorization of a quadratic polynomial, we always get 2 factors of the polynomial. But in quadratic equation, we are having this expression equals to 0. Equal का साइन होता है और एक हमारे पास RHS भी होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमें अब करना क्या है, हमें x की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है ढूंढ करके जिसको अगर x की जगह पे रख दिया जाए तो LHS और RHS दोनों ही इक्वल हो जाएगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. This polynomial will be having 2 factors, and this quadratic equations will be having 2 values of x. इस x की पावर 2 है ना, तो this quadratic equation will also be having 2 values of x, which can make LHS and RHS equal. Those values, देखिए मैं आपको इसमें मेंशन कर देता हूँ. I have already provided the PDF for this particular chapter, but since I'm going to represent all this with the examples. Solution of quadratic polynomial, quadratic equation. So
सॉल्यूशन मीन्स, यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन का मतलब है टू सच वैल्यूज ऑफ x और यूज्ड वेरिएबल which makes LHS and RHS equal to each other. यानी हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? We are going to find out the value of x. कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज. क्यों आएंगी? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है. उससे क्या होगा? क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसकी मैक्सिमम पावर यानी डिग्री 2 है. इसलिए x की 2 ऐसी वैल्यूज आएंगी जिनको अगर हम अपनी इक्वेशन में x की जगह पे रख दें तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा. x की इन्हीं 2 वैल्यूज को हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं. x की इन्हीं दोनों वैल्यूज को, 2 such values of x are known as solution of our quadratic equation. Now अब बात ही आती है कि सर क्या जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हमें हर बार एक्चुअल वैल्यूज ही मिलेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि x की वैल्यू 0 आ जाए या x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या x की वैल्यू कोई हाइपोथेटिकल नंबर आ जाए जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसको हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर. यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन given to us will always be in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. अब इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स जो निकल के आ रहे हैं, रूट्स मीन वैल्यूज ऑफ x. रूट्स का क्या मतलब हुआ? मतलब जो x की 2 वैल्यूज निकल के आ रही हैं उनका नेचर कैसा होगा. यही बात अभी हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि x की वैल्यू 0 आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि x की वैल्यू हाइपोथेटिकल वैल्यू आ जाए जैसे कि कोई इरेशनल नंबर वगैरह. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सी वी विल यूज दिस डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे जो कहता है b square minus 4ac is the discriminant. To find nature of roots. ये क्या चीज है? b square minus 4ac which is generally represented as capital D. Which is generally represented as capital D. D means discriminant. Discriminant का मतलब nature of the quadratic equation. हमारे quadratic equation का nature कैसा होगा वो हमको हमारे discriminant b square minus 4ac से मालूम चलेगा. कैसे? If b square minus 4ac is more than 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो भी हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाली, ये b की वैल्यू निकाली, ये c की वैल्यू निकाली और हमने इसमें रखा, कैलकुलेशन के बाद हमें मालूम चला कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम कहेंगे कि रियल अनइक्वल रूट्स. क्या बोल दिया इसने? सर इफ वी आर गेटिंग b square minus 4ac greater than 0, if we are getting b square minus 4ac greater than 0, then the two values of x will be real numbers. Real numbers का मतलब नेगेटिव भी होंगी पॉजिटिव भी होंगी.
ठीक है, रूट्स की भी हो सकती है, √2 हो सकती है, √3 हो सकती है, दे ऑल आर रियल नंबर्स। लेकिन ऐसा नहीं होगा √-3, √-5, ऐसा नंबर नहीं आएगा। दीज आर नॉट द रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब 1 2 3 4, -1 2 3 4, √2, √3, √4, √5, √6, यानी ये सारे के सारे नंबर्स हो सकते हैं। अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स का मतलब यहाँ मैंने अनइक्वल वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज वी विल बी हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ x, और दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, अनइक्वल, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। कब नहीं होंगी, अगर हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है तो हमें जो दो वैल्यूज मिलेंगी वो दोनों इक्वल तो नहीं होंगी, लेकिन दोनों ही रियल नंबर्स होंगी। उसके अलावा इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0, अगर हमारा b² - 4ac 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो हमारे दो रूट्स आएंगे वो दोनों ही रियल नंबर्स होंगे। जो दो रूट्स आएंगे, रूट्स का मतलब द 2 वैल्यूज ऑफ x, वो दोनों ही रियल नंबर्स होंगे एंड बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, इफ b² - 4ac is equal to 0, then the 2 roots will be real and equal, दोनों ही रूट्स जो है वो रियल और इक्वल होंगे। अब थर्ड सिचुएशन, इफ b² - 4ac is less than 0, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आ रही है तब क्या होएगा, हमारे रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स, तब वो हम नॉन रियल रूट्स हमें मिलेंगे। नॉन रियल रूट्स का मतलब इरेशनल नंबर्स, इस तरह के नंबर हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। सो दीज आर द 3 shots we are having. We are finding the nature of the roots of quadratic equation. How we are finding? We are finding the nature of the roots by the help of discriminant. Sir, what is discriminant? Discriminant d which is equal to b² - 4ac. यहाँ पे d 0 से बड़ा, this is our d, ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी ये d की वैल्यू जो है, d की वैल्यू 0 से बड़ी, d की वैल्यू 0 के बराबर, d की वैल्यू 0 से छोटी। तो इन 3 सिचुएशन में अगर हमारे पास b² - 4ac यानी d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, देन वी कैन से वी विल बी गेटिंग 2 अनइक्वल बट रियल रूट्स। b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है, देन वी विल बी हैविंग 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आ रही है, the value of b² - 4ac is less than 0, then non-real roots we will be getting. Now I'm going to play with 2 examples here related to this discriminant. See, we are having x² plus 7x plus 12, x² plus 7x plus 12। यहाँ पे हमने इसको क्या किया कि ax² plus bx plus c से इक्वल्स टू 0 से कंपेयर किया। कंपेयर करने में मालूम चला कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 12 है। x² का कोफिशिएंट a और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट 7, c कांस्टेंट टर्म प्लस 12 कांस्टेंट टर्म। अब हम इसका नेचर, रूट्स के नेचर की बात कर रहे थे। हम b² - 4ac निकालने जा रहे हैं। b² - 4ac की वैल्यू अगर आप निकालिए तो आपको मिलेगा b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 12। b² 7² is 49 minus 12 1 सा 12, 12 4 सा 48, 49 minus 48 will give you 1, और 1 क्या है, 0 से बड़ा है, 1
जो है वो 0 से बड़ा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास 0 से बड़ा आया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है? वो आई है 1, यानी हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा है। और अगर 0 से बड़ा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल, यानी दोनों ही रूट्स रियल होने के साथ साथ अनइक्वल होंगे, यानी इक्वल रूट्स नहीं होंगे। सॉल्व करके देख लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x कॉमन लिया तो x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 and x plus 4 equals to 0, x plus 3 equals 0, तो x की वैल्यू माइनस 3, एक वैल्यू ये आ गई, और x plus 4 equals to 0, तो x की वैल्यू माइनस 4, दूसरी वैल्यू ये आ गई। तो ये कैसे नंबर्स हैं? These are the real numbers। रियल नंबर का मतलब 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, ठीक है, और √2 √3 √4 √5, all these are real numbers। That means we have got real numbers and both are not equal. That means if b square minus 4ac is greater than 0, then we will get a real and unequal roots. Similarly, one more example I am going to take. See, x square plus 8x plus 16, x square plus 8x plus 16. This is the standard formulation, ax square plus bx plus c equals to 0. That means a equals to 1, b equals to 8 and c equals to 16. See, x square का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट b और 8, c कांस्टेंट टर्म 16. Now we are supposed to find out b square minus 4ac. b, that means 8 का स्क्वायर, minus 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16. 8 स्क्वायर is 64, minus 4 1 the 4, 4 16 the 64, and that is equals to 0. यानी हमारा b square minus 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। और अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो हमको रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। हमें रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। लेट अस चेक, सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, x कॉमन लिया तो x प्लस 4 and 4 plus 4 is common, x plus 4 equals to 0. This is x plus 4 in another bracket, x plus 4 equals to 0. If this x plus 4 is 0, x equals to minus 4. If this x plus 4 equals to 0, x equals to minus 4. So minus 4, the real numbers we have got, and both the values for x are equal, both are minus 4, equal roots. ये हमें कब मिला? जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 की इक्वल आई। सो this discriminant b square minus 4ac will be utilized to find out the nature of the roots. देखिए, जब भी हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है हम उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, तब तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, हमें रियल वैल्यूज मिलेंगी। अगर हमारे पास हमारे डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, then we will leave that particular by saying that the discriminant is less than 0, therefore the quadratic equation given will not give us real roots, real numbers नहीं मिलेंगे। किस तरह के नंबर मिलेंगे?
√-2, √-3, इस तरह के नंबर हमें मिलेंगे. So we will not do the solution, we will just put down the statement. So what we have discussed today is the difference between quadratic polynomial and quadratic equation. Apart from that, we have seen the general formula for our quadratic equation, and after that, this is the one of the most important thing, we had tried to find out the nature of our roots. हमारे roots का nature कैसा होगा, हमने वो चीज़ यहाँ पे जानने की कोशिश की है. b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac greater than 0, equal 0 और less than 0, जो हमें ये बता रहा है कि कब कब हमारे रूट्स यानी x की वैल्यूज रियल बट डिफरेंट या फिर रियल एंड इक्वल मिलेंगे, और साथ में ये भी बताएगा कि कब हमें नॉन रियल रूट्स मिल रहे हैं जबकि हमारे डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू 0 से छोटी है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. प्रैक्टिस फ्यू एग्जांपल्स टू, देखिए जैसे मैंने ये 2 एग्जांपल आपको भी सॉल्व करके दिखाए हैं. आई एडवाइस यू टू सॉल्व 2-3 एग्जांपल्स बाय योर साइड. अपनी बुक से उठाइए या किसी भी पॉलिनोमियल जिसका मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग हमने किया था, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 बना करके उसको सॉल्व करिए, उसका नेचर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए. ये हमारे पास पॉलिनोमियल ही था जिसको कि मैंने इक्वल टू 0 लगा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया और फिर उसका नेचर फाइंड आउट किया. नेचर फाइंड आउट करने के बाद उसको आपको सॉल्व करके भी दिखाया कि देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं. दिस थिंग यू कैन ऑल्सो डू. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर. Tomorrow we will be discussing the solution of quadratic equation by completing the square method. That term is also important. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसकी कीमत 3 नंबर तक हो सकती है. So do this thing in your school copy and practice few of the questions based on discriminant to find out the nature of the root. So best of luck to all of you. Stay safe and stay home.